Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331 4444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े समाचारों को आप तक लाएंगे। आज रविवार है और प्रत्येक रविवार की तरह आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर सीधे फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106। हमारा तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू राजेश, धन्यवाद आपका। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Foreign investors pump in over 2,000 crore rupees into the Indian debt market in the first week of October. And GST Council says taxpayers may file appeals against demand orders for last fiscal till January next year. अक्टूबर के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट बाजार में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। जीएसटी परिषद ने कहा कि करदाता पिछले वित्त वर्ष से संबंधित मांग पत्रों के विरुद्ध अगले वर्ष जनवरी तक अपील दायर कर सकते हैं। और आज की पहली खबर, अक्टूबर के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट बाजार में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। हालांकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इसी अवधि में इक्विटी बाजारों से लगभग 8,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। सितंबर में एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजारों से 14,767 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। इससे पहले एफपीआई लगातार 6 महीने से भारतीय इक्विटी बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। मार्च से अगस्त के बीच एफपीआई ने भारतीय बाजारों में 1,74,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। We have our first caller online with us, Sanjay. Sanjay is with us from... Sanjay, where are you from? Delhi? आप कहाँ से बोल रहे हैं संजय? I think we have lost touch. Dhiren, how would you evaluate the landscape of mutual fund investment and evolved? How do you think it has evolved in India in recent years, and what trends are currently shaping the industry? Mutual fund is evolving in the context of the investment and savings avenues which individual investors have. And what has happened in recent years is that interest rate had steady decline, a lot of lifestyle changes happening. And in that context, like for example, like most people early in their career, working career, they start with a home loan, which wasn't the case. So, there are a lot of things happening. Okay. And the technology and the ecosystem for investing has evolved, and it has become so easy for people to invest. Earlier, it used to be a privilege for somebody to be participating in the market. No longer. So, with that in mind, I think mutual fund is evolving, but I still feel that it is early days for mutual funds. Most people in India still do not invest in mutual funds. The people who invest are still the people who think that it is one one-off thing, a seasonal investment.
It is not. It is still far from being a mainstream investment avenue for large number of Indians. So I think it is making a good beginning. Mutual funds have evolved very nicely. They have been able to present a very compelling case for investment to investors, and also this seems to be the only product, the only savings product where a lot of investors have participated, and a market-linked one, where there are happy stories. I haven't come across anybody who has said that, for 3 years I've been doing my SIP and oh my God, it is so bad. It is Yes. terrible. It isn't like that at all. Which I think itself is the very best news that we can think of. और इस बीच कोलकाता से हमारे श्रोता विकास महतो हमसे जुड़ चुके हैं। विकास जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते जी हैं। नमस्ते मार्केट मंत्रा, सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। एसबीआई मल्टी कैप फंड 1 ईयर हो गया, 2 डिजिट रिटर्न दे रहा है। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड 6 मंथ हो गया, 2 डिजिट रिटर्न दे रहा है। मैं 36 साल का हूँ और 10 साल ये दोनों फंड रखना चाहता हूँ, आगे के लिए कैसा रहेगा? नमस्ते। 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो और ये अच्छे इन्वेस्टमेंट है, दोनों एसबीआई का है, तो थोड़ा स्प्रेड कर लीजिए, लेकिन इसके बारे में चिंतित मत होइए। और एक तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल तक अगर आप लगातार करते रहते हैं तो आपने देखा ही होगा कि अभी 1 साल में डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफी हैंडसम रिटर्न है। इस तरह का हैंडसम रिटर्न लगातार आपको नहीं मिलेगा, और बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी निवेश की स्थिति या हालत ऐसी ही रहती है, कभी अच्छा करता है कभी बुरा करता है, लेकिन इससे आप फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। आप निश्चिंता से निवेश कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करके सालाना एक बार नजर रखिए कि फंड ठीक ठाक है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि बाजार ठीक ठाक नहीं है, आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये उसके बावजूद ये अच्छा फंड है, तो लगातार निवेश अपना जारी रखिए। 10 साल में मुझे लगता है कि आपके उम्र वाले आदमी का अमीर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है अगर आप बने रहते हैं। धीरेन्द्र, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश के विकल्पों के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, तो एक चीज़ ज़्यादातर श्रोता जानना चाहते हैं कि जब वो निवेश का फैसला करें तो उनके पास बहुत तरह के विकल्प मौजूद होते हैं निवेश के लिए। ऐसे में म्यूचुअल फंड में निवेश बाकी अन्य तरह के निवेशकों से कैसे बेहतर है? जी हाँ, ढेर तरीके के म्यूचुअल फंड हैं, और म्यूचुअल फंड लोगों की सुविधा के लिए या निवेश की आसानी के लिए बनाया गया था, और जितने तरीके के म्यूचुअल फंड हो गए हैं उसमें चुनना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी और ये तो एक मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न बाजार की ये समस्या है कि अगर आप कई बार कोई भी चीज खरीदने जाइएगा तो आपके पास इतने ढेर सारे विकल्प होते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे आप पिज्जा खरीदने जाइए, तो आप जोमेटो पे खाने जाइए या देखिए, या स्विगी पे खाना देखिए, तो आपको इतना ऑप्शंस मिलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और तो कंफ्यूजन यहाँ पर भी है, लेकिन इस कंफ्यूजन से बचने का एक सीधा तरीका है कि थोड़ा समझिए कि है क्या। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सुविधाजनक तरीके का निवेश का सुविधाजनक एक अवसर है आपके लिए निवेश करने का, और चाहे 3600 तरीकों के हो, लेकिन निवेशकों के काम की फंड 4-5 तरीके के ही हैं। आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो आप निर्धारित कीजिए कि कितना रुपया करना है और कितने, और ये बात निर्भर करेगा कि आप कहाँ लगाएं, इससे कि आपको कितने साल के लिए लगाना है। और तीसरा चीज कि आप क्या पहली बार लगा रहे हैं। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाइए, अगर ये लंबे समय का पैसा है, और लंबे समय का मतलब है 5 साल से ज्यादा। और अगर आप थोड़ा लगा चुके हैं, उतार चढ़ाव से परिचित हो गए हैं, तो किसी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में लगाइए। और बस इतना ही है, ये 3 तरीके के फंड से आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। दूसरा कि अगर आपको टैक्स बचेगा तो टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे लगाया हुआ पैसा आप 3 साल तक नहीं निकाल सकते, ये अपने आप में लगता है कि एक डिसएडवांटेज है, पर मुझे लगता है कि शुरुआती निवेशक के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लगाने के बाद नहीं निकाल पाते, और 3 साल में आपको आमतौर पर फायदा ही हो जाता है, और अच्छा खासा फायदा हो जाता है। तो ये दूसरे तरीके का विकल्प है। तीसरा है कि आप कम समय के लिए पैसा तैयार रखना चाहते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, या किसी निश्चित अवधि के लिए लगाना चाहते हैं तो किसी शॉर्ट टर्म फंड में पैसा लगाएं या लिक्विड फंड में पैसा लगाएं। इन 5 फंड से आपकी सारी जरूरत पूरी हो जाती है, और बाकी जो 36 तरीके के फंड है उन्हें आप इग्नोर कर दीजिए।
Okay, very simply put, Dhiren, and we'll continue our discussion on the choice of mutual funds that one can go in for. In the meantime, we are joined by Yogesh from Delhi. Yogesh, a warm welcome. Please ask your question. नमस्कार वीरेंद्र सर। सर मेरा सवाल हमारे फंड पोर्टफोलियो को लेकर के है। अभी हमारे फंड पोर्टफोलियो में 4 फंड हैं, मेरा ही एसेट, एमर्जिंग ब्लू चिप और पराग पारिक टैक्स सेवर ELSS फंड और SBI स्मॉल कैप एंड एक्सिस स्मॉल कैप। सर 2 स्मॉल कैप है ताकि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। SBI एंड एक्सिस स्मॉल कैप जी 2 स्मॉल कैप फंड है। तो ये सर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि AUM बढ़ने की वजह से SBI और एक्सिस अब परफॉर्म शायद नहीं कर रहे उतना जल्दी, और जो नए फंड आ रहे हैं स्मॉल कैप में वो ज्यादा अच्छे हैं। तो और जिस तरह एक सवाल और हुआ है, जिस तरह का आपको फायदा हुआ है आपके लगाने के बाद से, और जो आपने देखा होगा कि आप और काफी सोचा समझा हुआ चुनाव किया हुआ फंड है जिसमें आपका पैसा लग रहा है, तो अपने आप पे भरोसा रखिए और लोग जो कह रहे हैं उन्हें छोड़िए। Okay, so what you are saying is whatever he's invested in is good and he should hold on to it. Yeah, it is actually not good. It is actually a great fund portfolio. Okay. And he should not unnecessarily fiddle it. और बहुत ज्यादा लोगों की बात मत सुनिए, नहीं तो आप जो अच्छे प्लान पे चल रहे हैं वो प्लान खराब हो जाएगा। No, he was thinking of withdrawing from some of the funds. Anyway, moving on, Dhiren, what impact has the regulatory environment had on mutual fund investment in India, and how have recent regulatory changes affected investor behavior and choices? Regulatory behavior, regulatory changes, it has been intense season for mutual funds. Mutual fund industry, the businesses, the distributors, the advisors, they have been, finding it difficult to cope with the pace of changes. But at the heart of it, it has gone about, making mutual fund much safer. I can say that, whether it be small changes or big changes like, introduction of direct plan 10 years ago. Investors can participate or invest in mutual fund, which costs them lower if they invest directly. That is a whole new, that is a whole new thing. It was unprecedented and it has succeeded. Then, the digital enablement of mutual fund or enabling investors to invest in mutual fund. In 15 minutes, if you have never invested in mutual fund, in 15 minutes, you are enabled to do that, and you can do it all by yourself. Then something as mundane and basic as, which makes mutual fund so safe, that money from an investor like Rajesh Lake investing in a mutual fund, and if you invest in a mutual fund, the money must come from your bank account, and only you, the investment can only be in your name. If you write a check and the money and you give it to me, your check cannot go about I cannot use it for investing, and Dhiren Kumar cannot become the owner of that investment. That makes it safe. Then whenever you redeem it, if you have all the money will go back into your bank account. At the time of investment, your bank account is linked while making that investment. That makes it very safe. Then something as simple as every time you make a redemption, you have to you sign off. You get an OTP on your phone and then you have to approve. Just making a redemption request won't do it. You have to approve it. All your investment must have a nominee. So it has been made mandatory, or somebody and if you don't want to have, then you have to declare that you don't want a nominee. So in that sense, small things, very high on details. And then at the back of it, because I've been involved with the regulatory body as well, while many of these things are being framed and watching it very keenly for many years. Mutual funds are being so intensely regulated, daily NAV, the way they are audited, the kind of oversight they have. Mutual funds are, it's very difficult for them to even think of being on the yellow line. So I think they have gone about making things very easier and difficult for them to do any messing up with investors' money, and making it safe. That I think has worked very well. The only thing that they cannot do is that it's a very competitive marketplace. There are 16 kind of open-end equity fund. There are 16 kind of
debt fund, and there are numerous index fund, and there are all kind of fixed income closed-end funds. And despite the classification being mandated, so they have gone about doing things. There are still, but it's a moving target. You have to be at it. और मुंबई से हमारे श्रोता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। Sir, my question is, everyone is saying that the small cap funds are overvalued, but I am checking our BSE India website. Its P ratio presently is 29.83, which is less than its 10-year median P. In 2018, the P was more than 100. So please explain that how it is. Everyone is saying it is costly. Please explain in detail. Why I should explain you what everybody else is saying? I can explain you and in detail what I am saying. And it's very difficult for me to, different, you have to really do one thing. Mutual fund is relatively safe because of its diversification. The small caps happen to be a little more volatile. But despite all the things that is being talked about, look at 20-year return of mutual fund category. Small caps, despite all the kind of ups and downs and the big, drawdown in the worst of times, they are still able to overcome that. The fact is that whenever the market goes down, small caps will fall more. But I think the kind of value addition from mutual fund in small cap universe, the basic filtering, the universe of small cap stock is something like 3,000, and mutual fund universe of small cap stocks will not exceed about 600-700. That itself, the elimination. Don't think of a great fund. Mutual funds will also go wrong with their small cap portfolio, a part of the small cap portfolio. Their universe will be constrained. The best performing small cap fund happens to be a portfolio of nearly 250-300 stocks, which is quite unusual. But that's the only way they can manage such a large fund. So this is a problem. The markets can come down, small caps can fall more. But for a domestic small investor who is doing his SIP, it could be disappointing for a new investor, but I don't think it is that risky. धीरेन्द्र, फाइनेंशियल मार्केट्स में, वित्तीय बाज़ारों में हम देखते हैं कि काफ़ी जो उथल पुथल मची रहती है। ऐसे में जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वो ऐसे क्या सतर्कता रखें जिससे वो थोड़ा अपना को रिस्क से बचा सकें और अपना जो भी उनके रिटर्न्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकें, उनको अच्छे तरह से उनको रिटर्न को सुनिश्चित कर सकें? उनको दो काम करना चाहिए। टीवी और अखबार बाजार के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, और दूसरा जो चीज करना चाहिए कि उनको मार्केट मंत्र सुनना चाहिए। अगर ये दो काम करें तो लोग इससे, ये जो शोरगुल बाजार के बारे में मचा रहता है, कभी आज एक लड़ाई छिड़ गई है जिससे कि मिडिल ईस्ट में कुछ समस्या होगी जिसकी वजह से कल बाजार में थोड़ा सा उठापटक दिखा जाएगा, और इस उठापटक को गेस करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारे यहाँ इतने हजारों लोग हमें सालों साल फोन करते हैं और जिस तरह की बात बताते हैं कि वो SIP कर रहे हैं, इन चीजों को गेस करना बड़ा मुश्किल है। उनको फायदा हुआ है, डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है, छोटी सी रकम को लगातार लगाने की वजह से उनके एक बड़ी पूंजी बन पाई है। ये जो चीजें हैं, इन चीजों का आप फायदा उठाइए। SIP के जरिए आप फायदा उठाते हैं, और अगर इसका आप सीधे तरीके पे फायदा उठाते हैं तो सेबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 90% से ज्यादा जो एक्टिव मार्केट के ट्रेडर हैं उन्हें नुकसान होता है, और पिछले साल नुकसान हुआ है। और ये ऑफिशियल है, ये कोई सैंपल सर्वे नहीं है, ये सारे डेटा पे आधारित। हमारे बाजार में जितने ऐसे निवेशक हैं, जो ये निवेशक हैं ही नहीं बल्कि ये बाजार के भागीदार हैं, ये सुबह 9:30 बजे काम के तौर पे ये मार्केट में ट्रेड करते हैं, शाम तक अपने सौदे को देखते हैं, पैसा लगाते हैं, निकाल लेते हैं। ये इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर तो हमारे यहाँ कॉल करते हैं कि कौन से फंड में पैसा लगाया जाए, 10 साल के लिए लगाना है, ये निवेश हुआ। तो उन लोगों को बड़ा नुकसान होता है, और उससे बचने का आपके पास एक ही तरीका है कि आप लंबे समय का ओरिएंटेशन रखिए, लंबे समय के लिए पैसा लगाइए, धीरे धीरे पैसा लगाइए, और बाजार जब गिरे तब भी लगाइए, क्योंकि बाजार कम समय में बहुत जोर से गिर सकता है लेकिन लंबे समय में केवल बढ़ता है। इस विश्वास के साथ जब आप निवेश करेंगे तो आपको आमतौर पर मुनाफा होगा।
इस बाजार के शोर से भी बच पाएंगे। और मेरी सलाह होगी कि सब लोगों को इस पे जल्दी से जल्दी इस पे शुरुआत करनी चाहिए। आपके पास 1000 कारण होंगे कि आपको पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए या क्यों लगाया हुआ पैसा बेच देना चाहिए, लेकिन केवल एक कारण है कि आपको पैसा लगाना चाहिए और ये बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी 5 साल में देखेंगे तो बाजार केवल बढ़ता है। Okay. Joining us from Thane is Gurunath. Gurunath, a warm welcome. What's your question? Please go ahead. नमस्ते सर। Namaste. सर मेरा क्वेश्चन है, जो म्यूचुअल फंडों में जो मतलब बच्चों के लिए, जैसे हमारे मेरे एक 6 साल की बच्ची है, तो मैं सर इसमें जो म्यूचुअल फंडों में ऐसे कोई फंड है कि जो उनके आगे चल के उनके मतलब 18 साल के बाद उनके एज के हायर एजुकेशन या उनकी जो नीड्स है, मतलब जो शादी है वगैरह मैरिड है, तो सर ऐसे कोई मतलब फंड है क्या, उसमें मतलब इन्वेस्ट करके हम थोड़ा सा उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं सर? थैंक यू। जी हाँ, से लगाना चाहिए। बच्चों के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए या उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबींग के सपोर्ट के लिए, रिसोर्सेज के लिए, पढ़ाई के लिए हो, शादी के लिए हो, आपको लगाना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे फंड्स ने चिल्ड्रन फंड लॉन्च किए हैं, लेकिन उन पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अपने बच्चों के नाम पे आप निवेश कर सकते हैं और उस निवेश को आप उस बच्चे के नाम पे निवेश करेंगे और उस बच्चे के गार्जियन आप होंगे और आपका चेक वहां पे जाएगा और आपका ये निवेश जारी रहेगा। लंबे समय के लिए किसी एक अच्छे इक्विटी फंड का चुनाव कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर बर्थडे पे, ये अक्सर से अगर एक बच्चा पैदा नवजात शिशु के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आप हर साल उसके बर्थडे पे अगर 18 साल तक अगर कोई रकम जमा करते हैं तो एक बड़ी पूंजी में इकट्ठा हो जाएगी। अगर आप SIP करते हैं, ये भी करना संभव है, या आपके बैंक खाते से चलेगा और जब वो 18 साल का होगा तो ये उसका हो जाएगा। और उसके पहले अगर उसको किसी कॉलेज में जाना पड़ता है तो वो अपना पैसा नहीं, आप वो पैसा अपने खाते में निकाल करके उसको दे सकते हैं। और जैसे वो 18 साल का होगा, बल्कि इसका एक दूसरा भी फायदा है जब आप बच्चे इन्वेस्ट करते हैं कि बच्चे के नाम से आपने इन्वेस्ट किया, शुरुआत के 18 साल में जब तक वो मेजर नहीं होता है तब तक इससे मिलने वाला कोई भी फायदा, तो चूंकि आपका फायदा होगा नहीं क्योंकि आप पैसा निकालेंगे नहीं, और लेकिन अगर कोई डिविडेंड होता है या कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो मिलने वाला जो इनकम है वो आपका इनकम माना जाता है। लेकिन जैसे बच्चा 18 साल का हो जाता है, वो अपने पढ़ाई के लिए इस पैसे को निकालेगा, तो इस पैसे को निकालने पे जो मुनाफा होगा उस पर उसको नहीं लगेगा, क्योंकि शुरुआती सालों में उसके पास, अगर आप मान लीजिए उसकी पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट ये निकालता है, तो शुरुआती साल में उसके पास आमदनी ही नहीं होगी तो उस पर उसको टैक्स नहीं लगेगा। So in light of this, what about the Sukanya Samriddhi program? जी, सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबे समय के लिए निश्चित आमदनी देने वाली, आज के दिन ये 7.25%, और ये जो इससे मिलने वाला ब्याज है ये हर साल हर क्वार्टर रिवाइज होता रहता है। अगर आपको कभी भी 10 साल से ज्यादा अवधि के लिए पैसा लगाना है तो सुकन्या समृद्धि योजना सुरक्षित है, लेकिन कोई भी फंड, कोई भी इक्विटी फंड आपको इससे 1.5 गुना 2 गुना रिटर्न दे पाने में सक्षम होगा। केवल अंतर यह है कि ये जो 1.5 गुना 2 गुना मैं बोल रहा हूँ ये निश्चित नहीं है, ये गारंटीड नहीं है। और सुकन्या समृद्धि में आपको कम मिलेगा, लेकिन ये गारंटीड है और भारत सरकार की योजना है, उसके बारे में आप निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन गारंटीड ये भी नहीं है कि 7.25 मिलेगा। 2 साल के बाद अगर ब्याज दरें कम हो जाती हैं जैसे कि हुई है पहले, तो ये 7.25% भी घट के नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी पूंजी हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन मेरी सलाह होगी कि जो ये प्रोग्राम सुन रहा है, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, निवेश करना आसान हुआ है, एक अच्छे फंड का चुनाव कर सकता है, नहीं चुनाव कर सकता है तो एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसको 10 साल से किसी भी अवधि के लिए यही किसी फंड में लगाना चाहिए, ना कि सुकन्या समृद्धि योजना के निश्चित आमदनी में से आकर्षित होकर के उसमें लगाएं। जी। और दिल्ली से हमारे श्रोता जगमाल हमसे जुड़ चुके हैं। जगमाल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। पहले तो मैं ये जगमाल जी आप अपने जो बताए हुए तरीके से मैं अब तक लगाता आया हूँ और फायदे में हूँ। अच्छा, आप अपने रेडियो सेट की जरा वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है सर। हाँ, आप सवाल पूछें अपना। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि सर मैं 10 साल पहले इन्वेस्को एंड कैनरा रबो की टैक्स सेवर में लगाए थे पैसे, वो 5.5 गुना हो गए हैं।
तो अब उनको निकाल के मैं किसी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में या स्मॉल कैप में शिफ्ट करना बुद्धिमानी होगी या लगे रहने देना बुद्धिमानी होगी? लगे रहना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि अगर कोई फंड बेहतर विकल्प है तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन ये फंड अभी भी अच्छा है। अगर आज मुझे किसी को रिकमेंड करना पड़े तो मैं उसकी सलाह दूंगा। और बुद्धिमानी इसलिए होगी क्योंकि अगर आप जो लगा हुआ पैसा है उसमें वो जब आप निकालेंगे तो जो आपने पैसा लगाया था और आज जो उसका वैल्यू है, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए आज तक जोड़ करके लगाया है छोटे छोटे रकम में, और आज अगर वो बढ़ के 10 लाख हो गया है, ये मैं केवल उदाहरण के तौर पे देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो जो आपका 5 लाख रुपए का फायदा हुआ 5 लाख रुपए पे, और मान लीजिए कि सब कुछ लॉन्ग टर्म होता है, तो आपका पैसा निकालते ही आपकी टैक्स की देनदारी 50,000 रुपए होगी। 5 लाख बढ़ के 10 लाख होता है, 5 लाख मुनाफा है, 5 लाख का 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर ये आपका फंड लगा हुआ है, वो फंड अभी भी अच्छा है जो कि है, तो इसको निकालना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। Okay. Moving on, the 52nd GST Council yesterday came out with an amnesty scheme giving taxpayers time till the 31st of January 2024 to file appeals against demand orders passed by tax officers till March 2023. As per the GST law, an assessee can file an appeal against an assessment order seeking taxes within 3 months of the tax officer passing such an order. This can be extended by 1 more month. This will facilitate a large number of taxpayers who could not file an appeal in the past within the specified time period. The Council in its meeting also gave extra time to GST registered businesses to file appeals with an enhanced pre-deposit of 12.5% of the tax demand against 10% currently. In another trade facilitation measure, the GST Council has amended GST rules to provide that provisionally attached property will be released after completion of 1 year. Under the GST law, tax officers can provisionally attach properties including bank accounts of GST registered entities over non-payment of taxes. और धीरेन्द्र जी, हम काफ़ी समय ये बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो हम निवेश करें वो एसआईपी के थ्रू करें, लेकिन बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा दुविधा में बने रहते हैं। तो ऐसे निवेशकों को आप रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएशन है उसके लिहाज से एसआईपी कितना अच्छा है? ब्रीफली धीरेन्द्र, ये अच्छा ही नहीं है, ये अनिवार्य है, क्योंकि आप जब एसआईपी नहीं करते हैं और बाजार का जो चरित्र है कि वो बहुत तेजी से गिरता है, बहुत तेजी से बढ़ता है या धीरे धीरे बढ़ता है, तो एक नया निवेशक हमेशा के लिए बाहर हो जाता है और वो दोबारा इसमें पैसा नहीं लगा पाता है। तो मेरी ये धारणा है कि किसी भी निवेशक को इक्विटी में, चाहे वो पुराना हो नया हो, उसको एसआईपी ही करना चाहिए, भले ही आपके पास एक बड़ी पूंजी आ जाए। जी, तो उसको स्प्रेड करके one must spread it out is what you are saying, even yes. if you have the money lying with you in your account. Yes, in equity investment is very risky if you invest at one go, because the moment you catch a market high Okay. and the market goes down a little bit, it is Okay, very okay. difficult जी. for you to stick around. जी धीरेन्द्र जी, understood. तो चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Dhiren, for being with us. And before we close the headlines once again, foreign investors pump in over 2,000 crore rupees into the Indian debt market in the first week of October. And GST Council says taxpayers may file appeals against demand orders for last fiscal till January next year. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.